Hello friends, greetings from Gitanjali Pathshala. In this sections, we are going to solve CLAT 2025 paper and the current affairs section. Here I will show you that if you don't have much of the prior knowledge about a topic or you are completely a layman about a topic, then also we can solve most of the questions with utmost accuracy. How? Let's see it. Okay, let's first read this paragraph. Chinese President Xi Jinping, okay, and Indian Prime Minister used a BRIC summit in Russia to showcase the ambition for more harmonious relationship, okay, between the two most populous country after years of animosity. Means काफ़ी टाइम से animosity चल रही थी, enemy थे और now there is some harmonious relationship between both the countries. The meeting who has not held formal talks for 5 years. 5 सालों से कोई बात नहीं हुई. Okay, but this give an opportunity, okay, for showcasing the West that West has failed to isolate Russia over the Ukrainian war. Okay, यहाँ ये भी दिखा रहा है कि Putin is also showcasing the West that West has failed to isolate Russia over the Ukrainian war. Okay, and this is an opportunity. BRICS summit as an opportunity where India and China are getting engaged after years of animosity, okay, and they are doing some harmonious relationship, okay. A final communique listed a number of projects aimed at facilitating trade between the BRICS nation, including, okay, this communique listed a number of projects, okay, which facilitate trade between the BRICS nation, including an alternative payment system to dollar. Okay, ये बात कर रहे हैं कि हम डॉलर के ऑल्टरनेटिव एक पेमेंट सिस्टम बनाएंगे, बट दैट डिड नॉट इंक्लूड डिटेल्स और टाइमलाइन. यानी कि इस पेमेंट सिस्टम के बारे में कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देगी, ना कोई टाइमलाइनिंग देगी, बस उन्होंने बात की उसके बारे में. ठीक है. Just 2 days after New Delhi announced that it has reached a deal with Beijing to resolve a 4-year military standoff on their disputed Himalayan frontier, Xi told Modi that they should enhance communication and cooperation and effectively manage the differences. Okay, यहाँ ये बता रहे हैं कि how both the country यानी कि चाइना और इंडिया जो कि 4 सालों से मिलिट्री स्टैंड ऑफ पे थे, ठीक है, नाउ दे हैव increase the communication and cooperation. Okay, BRICS. Now it is telling about BRICS. BRICS, an idea that was given by Goldman Sachs 2 decades ago to describe the growing economic clout of China and other major emerging market, is now a group where 45% of the world population, 35% of global economy. Okay, इस पैराग्राफ में भी ये बता रहा है कि what was BRICS की आइडिया गोल्डमैन सैच ने दिया था. ठीक है, एंड इसमें कौन कौन थे. एक तो ग्रोइंग इकोनॉमीज थी इंक्लूडिंग चाइना. ओके, नाउ दे आर 45% of the world population, 35% of the global economy. Further, they said that they had little optimism for the BRICS club as long as China and India so remain divided. Okay, means इनके एक और ऑथर थे, उन्होंने बोला कि they had little optimism about BRICS. They are not much hopeful about BRICS, okay, because India and China remain so divided. Okay, यानी कि ब्रिक्स एक टर्म कोइन कर दिया उन्होंने 2001 में, बट एक टर्म ही है, बहुत ज़्यादा मतलब इसका फ्यूचर नहीं है, या बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म या होपफुल नहीं है इस ग्रुप के बारे में. इट सीम्स टू मी बेसिकली ए सिम्बॉलिक. ओके, बोल दिया ना, देखो सिम्बॉलिक है ये, एक एनुअल गैदरिंग है, मीन्स नाम की एक एनुअल गैदरिंग है where important emerging countries, particularly noisy one like Russia and China, okay, Russia and China को noisy country बोल दिया उन्होंने, can basically get together and highlight how good it is to be part of something that does not involve US. okay, ओके, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इट्स ए सिम्बॉलिक गैदरिंग जहाँ पे कुछ नॉइसी कंट्री है लाइक चाइना एंड रशिया, जहाँ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट वी आर पार्ट ऑफ समथिंग जिसमें यूएस नहीं है. मीन्स यूएस को भी अगर छोड़ दिया जाए देन वी कैन डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज. ओके, the 43
पेज फाइनल कम्युनिक फ्रॉम द सबमिट रेंज फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स एंड नार्कोटिक्स टू एआई। ओके, एआई पे बात कर रहे हैं इसमें, इस सबमिट में। एंड इवन प्रिजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स। ओके, बिग कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट लैक डिटेल ऑन सम मेजर इशू। ओके, बट दे हैव लैक डिटेल ऑन सम मेजर इशू। बहुत सारे मेजर इशूज पे उन्होंने बात नहीं की। इट मैंशन यूक्रेन जस्ट वन। ओके, देखो इन्होंने क्या बोला कि दे the summit ranged from certain geopolitics and narcotics to AI related topic and even preservation of big cats. Okay, बट उन्होंने यूक्रेन के बारे में ज़्यादा बात नहीं की। दे मैंशनड यूक्रेन जस्ट वंस। ओके, नाउ इफ़ वी कम टू द क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमने पैराग्राफ रीड कर लिया है और एक ओवरव्यू इस पैराग्राफ का ये है कि ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिक्स क्या कर रहा है कि इंडिया और चाइना को एक उन्होंने एक टेबल दिया सो दैट दे कैन कम टुगेदर एंड टॉक ईच अदर। ओके, क्योंकि 4-5 सालों से वहाँ पे स्टैंड ऑफ चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, और ब्रिक्स के बारे में बताया गया। गोल्डमैन सैच ने ये 2 डिकेड पहले बात की और जिम ओनिल ने बोला कि दिस पर्टिकुलरली ग्रुप इज नॉट ऑफ मच ऑप्टिमिस्टिक और नॉट फ्यूचरिस्टिक ग्रुप, जिसके बारे में ज़्यादा मतलब स्ट्रेस किया जाए। एंड इट वाज ओनली ए सिंबॉलिक गैदरिंग। ठीक है, जिसमें यूएस नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ। नाउ अगर आपको करंट अफेयर्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, यू आर कम्प्लीटली ए लेमैन, देन लेट्स सी कि आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ वी आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। ओके, दिस इज बेसिकली द thing which I want to show you, that don't get delve into too much of the current affairs. Even though if you don't know about a topic, then you can also solve many of the questions undisputedly. Okay, let's see the questions one by one. The 16th BRICS achieved the following: launch of BRIC currency। ब्रिक्स करेंसी के बारे में कहीं पर भी बात नहीं हुई है। यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हुई है इंडिया चाइना की, इंडिया चाइना के बारे में बात हुई है। यहाँ ओवरऑल उन्होंने बोला कि व्हाट इज ब्रिक्स, और यहाँ ओवरऑल बोला विदाउट यूएस, विदाउट यूएस। ओके, तो लॉन्च ऑफ ब्रिक्स करेंसी, नो। इन द फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ दे आर सेइंग दैट दे वांट टू मेक ब्रिक्स as an alternative payment system to the dollar, but did not include the details or timelines। यानी कि यहाँ पे उसकी कोई डिटेलिंग और टाइमलाइन नहीं दी है। दे डिस्कस्ड, बट उसकी कोई टाइमलाइन और डिटेलिंग नहीं दी है। ठीक है, तो 16th ब्रिक्स अचीव्ड द फॉलोइंग, क्या उससे अचीव हुआ लॉन्च ऑफ ब्रिक करेंसी? उन्होंने सिर्फ बात की है लेकिन कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ, तो दिस इज रॉन्ग। डी एस्केलेशन ऑफ रशिया यूक्रेनियन कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट में उन्होंने बोला कि दे मेंशन द यूक्रेन जस्ट वॉन्स 1 point, and second thing is Putin was also showing that the West had failed to isolate Russia over Ukrainian war, right? So that means de-escalation of Russian-Ukrainian conflict, that was also wrong. डिप्लोमेटिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये हर जगह पैराग्राफ में बोल रहे हैं, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड ऑल ऑफ द वो वैसे ही गलत हो गया। व्हाट डज द लेटर एस इन ब्रिक्स स्टैंड फॉर? ब्रिक्स का क्या है? बी फॉर ब्राज़ील, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एंड द लास्ट एस गोज फॉर साउथ अफ्रीका। अफ्रीका बाद में ऐड ऑन हुआ था। ठीक है, द इनिशिएटिव ऑफ बिग कैट्स अलायंस रेफर्स टू, यहाँ बात हुई ना पैराग्राफ में कि इवन द प्रिजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स। बिग कैट्स कौन सी होती हैं? जैसे हमारे लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, उस टाइप से बिग कैट्स, राइट? These big cats are the family of cats. Okay, the initiative of big cats alliance refers to lion, tiger and jaguar. Okay, टाइगर, जेगुआर एंड लेपर्ड, ये भी बिग कैट्स है। लायन, चीता, स्नो लेपर्ड, सारी ही बिग कैट्स है यार, तो इसका डी आंसर होना चाहिए। इधर भी साउथ अफ्रीका, डी आंसर। विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ए क्रिटिक फ्रॉम द वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट? हमने कॉम्प्रिहेंशन में भी देखा ना कि कुछ इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज करना चाह रहे थे किसको? ब्रिक्स को। व्हाट दे वांटेड टू से कि इंडिया और चाइना डिवाइडेड रहेंगे, तो जस्ट एक टर्म है जहाँ पे बस ये लोग आपस में मिलते हैं, ठीक है, और दिखाना चाहते हैं
especially the noisy country Russia and China, that they are good without US as well, right? तो देखते हैं, लेट्स सी वन बाय वन. ब्रिक्स करेंसी कैन नॉट डिस्प्लेस डॉलर. इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई. वहाँ बस ये बात कर रहे थे कि इट्स एन, दे वांटेड टू मेक एन ऑल्टरनेटिव टू डॉलर पेमेंट सिस्टम. तो लेकिन उसकी कोई टाइमलाइन नहीं थी. और जो क्रिटिक है, क्रिटिक तो वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट थे ना, जो कि बताना चाह रहे थे कि व्हाट इज ब्रिक्स. तो एशियन इकोनॉमी विल नॉट इम्पैक्ट वेस्टर्न इकोनॉमी, ये भी कुछ बात नहीं की इन्होंने, क्रिटिक्स ने. इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट विल इम्पैक्ट द प्रोग्रेस ऑफ ब्रिक्स, ये तो क्लियरली बोला था अभी जो हमने कॉम्प्रिहेंशन में भी देखा कि राइट दे हैड लिटिल ऑप्टिमिज्म फॉर ब्रिक्स. जिम ओनील बोल रहे हैं ना, बिकॉज एज लॉन्ग एज चाइना एंड इंडिया रिमेन्ड सो डिवाइडेड. ओके, तो दिस इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. द emergence ऑफ ब्रिक्स सिग्नल एशियन कंसोलिडेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कभी क्लियरली ये बोला नहीं गया. डिमिनिशन यूरोपियन डोमिनेंस, इसकी भी बात नहीं है कहीं पर भी, तो ये भी गलत है. रिवाइवल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ऐसा भी कुछ डिस्कशन नहीं हुआ. ये जियो पॉलिटिक्स विदाउट यूएस डोमिनेशन, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ ये बात कर रहे हैं ना कि these noisy countries like Russia and China, they wanted to show to the world that we are part of something that does not involve US. Okay, तो इसका यही आंसर होगा, ये जियो पॉलिटिक्स विदाउट यूएस डोमिनेंस. Okay, next question is which one of the below is the outcome of 16th BRICS meeting? Proposal to end Russian Ukrainian war. नहीं, क्योंकि इस कॉम्प्रिहेंशन में क्लियरली था कि they have mentioned Ukraine only once, and Putin also showed that West had failed to isolate Russia over the Ukrainian issue or Ukrainian war. Okay, तो ये भी गलत हो गया. टू एक्सपैंड ब्रिक्स बाय इंक्लूडिंग स्कैंडेवियन कंट्रीज. स्कैंडेवियन कंट्रीज के बारे में कोई बात नहीं है. दिस इज कम्प्लीटली ए जोग्राफिकल टर्म्स. दे इंक्लूड सम ऑफ द कंट्रीज स्पेशली टू द ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज. ओके, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी बात नहीं की है स्कैंडेवियन कंट्रीज की. टू रिकॉग्नाइज चाइनीज क्लेम ऑफ ताइवान, ये भी बात नहीं हुई. रिड्यूसिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यहाँ ये बात हुई है. दिस इज द राइट आंसर. ओके, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ और नेक्स्ट comprehension. This is something related to polity on the recommendation of parliament. Okay, let's go it. On the recommendation of parliament, the president of India effectively abrogated means end करना उसको, एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उन्होंने आर्टिकल 307 को नलीफाई या वॉइड कर दिया, इसको एंड कर दिया, डिलीट कर दिया. ठीक है. एंड गेव एक्सेंट, और एक्सेंट दिया, मंजूरी दी टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यानी कि आर्टिकल 370 को हटा के उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की है. ठीक है. The former state of Jammu and Kashmir has been reorganized as the new UT of Jammu and Kashmir and the new UT of Ladakh on 31st October 2019. यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर था उसमें उन्होंने क्या किया, इस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक तो न्यू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, और एक लद्दाख यूटी. ठीक है. द न्यू यूटी ऑफ लद्दाख कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो कारगिल और दूसरा ले. ओके. द रेस्ट ऑफ द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द न्यू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बाकी का जो पोर्शन था दैट इज द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, उसको यूटी भी बोल दिया. ठीक है. By 2019, the state government of former Jammu and Kashmir had reorganized the area of these 14 districts into 28 districts. Okay. By 2019, the state government Jammu and Kashmir had reorganized the area of these 14 districts into 28 districts. Okay. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने इस एरिया को 14 डिस्ट्रिक्ट की वजह 28 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया था, और उन डिस्ट्रिक्ट के आगे नाम बता रहे हैं. ठीक है. डोंट गो इनटू दोज, यानी कि 14 से उन्होंने 28 बना दिया था डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. आउट ऑफ दीज
कारगिल डिस्ट्रिक्ट वॉज कार्ड आउट फ्रॉम द एरिया ऑफ ले एंड लद्दाख, यानी कि कारगिल एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया था दैट वॉज मेड फ्रॉम ले एंड लद्दाख एरिया से, ठीक है। द ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ द न्यू यूटी ऑफ लद्दाख हैज़ बिन डिफाइंड इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड ऑर्डर 2019 issued by the President of India to include the area of district of Gilgit Wazarat, Chilas tribal territory of this in addition to the remaining area of Leh and Ladakh district 1942 Kargil district। ये थोड़ा सा इन्होंने क्या है कि लीगल लैंग्वेज यूज़ कर ली है, मतलब पॉलिटिकल लैंग्वेज यूज़ कर ली है, जिसमें एरिया की बाइफर्केशन के बारे में बताया गया है और उससे बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, राइट। ठीक है, हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते, आपने पूरा कॉम्प्रीहेंशन देख लिया है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 370 को एब्रोगेट कर दिया है, एंड कर दिया, और उसकी जगह पे दो पार्ट बना दिए हैं, दोनों को यूटी बनाया गया है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरा लद्दाख यूटी। ओके, और उससे पहले क्या बताया कि लद्दाख वाला जो यूटी बनाया है वो दो डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनाया गया है। दो डिस्ट्रिक्ट कौन से होते थे, एक तो कारगिल और एक ले, इन दोनों को कंबाइन करके लद्दाख एरिया बोल दिया और उसको यूटी डिक्लेयर कर दिया, और रेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर यूटी बोल दिया। पहले क्या होता था, 14 डिस्ट्रिक्ट होता था, उसके 28 डिस्ट्रिक्ट बना दिए थे प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट ने। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन वन बाय वन। Which of the following statement regarding Article 370 of the Constitution of India is correct? It gives special status to the erstwhile state of Jammu and Kashmir, right? इसी के बारे में बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर की, इसी का स्पेशल स्टेटस था, हर जगह हम पढ़ते आए हैं मतलब, और इसी को इन्होंने एब्रोगेट किया है, राइट। तो ए इज द अनडिस्प्यूटेड आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डिवाइडेड द अर्स्टवाइल स्टेट, जो पहले जो स्टेट था उसको किस चीज़ में डिवाइड किया उसने। ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में ही था कि दो यूटीज़ में कन्वर्ट किया गया, उन यूटीज़ के नाम कौन कौन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी, दो यूटीज़ बनाई गई है। तो 2 यूटीज़, आंसर इज सी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी ऑफ इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये भी कंप्लीटली करंट अफेयर्स का है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो नहीं सकता, जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, वहाँ एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, राइट। तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया। अगर यहाँ दिल्ली ऑप्शन होता तो दिल्ली भी आया था, क्योंकि दिल्ली भी एक स्टेट कंसिडर होता है, वहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। बाकी गलत हो गए, इजी। हाउ मैनी स्टेट एंड यूटीज आर प्रेजेंट इन इंडिया, ये भी इजी है यार, 28 स्टेट एंड 8 यूटीज, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is the capital city of UT of Ladakh? Which among the following is the capital city of UT of Ladakh? लद्दाख यूटी की कैपिटल सिटी कौन सी है, ठीक है, इसको देखते हैं पैराग्राफ में। देखो, लद्दाख दो को काट के बनाया गया था, दो को सॉरी काट के नहीं, दो को कंबाइन करके, एक तो कारगिल था और एक ले था, राइट। तो यही आंसर होना चाहिए इसका। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, और इसमें ले दे रखा है तो ले, ओके। तो इनके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कारगिल वॉज फॉर्मली ए यूटी, यस इट इज फॉल्स, क्योंकि कारगिल और ले को मिला के लद्दाख बनाया गया और लद्दाख वाज ए यूटी, तो ये भी फॉल्स है, राइट। लद्दाख इज एडमिनिस्ट्रेड बाय जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, नो। फिफ्थ, चलो इस पे क्वेश्चन मार्क मार लेते हैं, अभी हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल 15 न्यू डिस्ट्रिक्ट वर फॉर्म्ड टू बी पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2019। पहले 14 थे, फिर 14 से 28 बना दिए, तो 14 न्यू डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन फॉर्म्ड, तो 15 तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और इसने पूछा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स,
यानी कि तीनों ही फॉल्स होंगे तभी ये डी आंसर आएगा, क्योंकि ये भी श्योर है दिस इज फॉल्स एंड हेयर ऑल्सो वी आर श्योर इट इज फॉल्स, राइट। तो डी इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन इज द नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 एक्ट रिसीव्ड नियर यूनैनिमस सपोर्ट, मीन्स इसको यूनैनिमस सपोर्ट मिल चुका है इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा, मीन्स दोनों के दोनों ऑलमोस्ट एग्री है कि इस एक्ट को पास कर दिया जाए। द लेजिस्लेशन मैंडेट द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ ऑल सीट इन लोकसभा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली, यानी कि 1/3 सीट रिजर्व कर रहे हैं विमेंस के लिए इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली फॉर वुमेन। ओके, दिस लिंकिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट to the implementing of two long-term exercises of census and delimitation make little sense to many and sounds quite like empowerment delayed for now. Okay, these three lines says that is this act linking, इस एक्ट को लिंक कर दिया गया है किससे, दो एक्सरसाइजेस के साथ, सेंसस और डीलिमिटेशन। ठीक है, कि ये एक्ट तभी इफेक्ट में आएगा जब सेंसस और डीलिमिटेशन कंप्लीट हो जाए, और इसीलिए बोल रहा है कि दैट मेक्स लिटिल सेंस टू मैनी एंड साउंड्स क्वाइट लाइक एम्पावरमेंट डिलेड फॉर नाउ, क्योंकि जब तक सेंसस और डीलिमिटेशन नहीं होगा तब तक ये एक्ट इफेक्टिव नहीं होगा, राइट। तो एम्पावरमेंट डिलेड है विमेंस के लिए, उनका रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा लोकसभा में, राज्यसभा में और दिल्ली में, right, and state legislative assemblies as well. In a 2012 article holding up half the sky, okay, the reservation of women in India, Rudolph C. Hardia breaks down the common misconception that cloud our understanding of women's political participation. Okay, this is the writer, it is saying something that when women do attain a national leadership role, okay, जब कोई women एक national leadership role लेती हैं, it is often because they have inherited this mental from their father or husband rather than as a person in their own right and are then projected as matriarch, but they are the part of some joint family complementary to the patriarchy rather than a challenge to it. Okay, इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी विमेन अगर नेशनल रोल पे चली जाती है, नेशनल लीडरशिप अटेंड कर लेती है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपने मेंटल की वजह से, मतलब अपने स्किल्स की वजह से ऊपर गई है, राइट, but they have inherited these things from their father and husband कि ये इनका राइट था, and then projected as matriarchy, okay, and complemented to the patriarchy, मतलब उस पेट्रियार्की को चैलेंज करके वो आगे एक नेशनल लीडरशिप के तौर पे नहीं बढ़ी है, उनको अपने फादर से या हस्बैंड से वो चीज़ें मिली हैं, एंड वी डिक्लेयर और शो दैट दिस इज मेट्रियार्की, हम मातृत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, बट दैट मातृत्व इज समथिंग नॉट एक चैलेंज और रादर इट्स ए कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उस पेट्रियार्की को ही सपोर्ट कर रहा है, वो पेट्रियार्की को ही सपोर्ट कर रहा है वो मेट्रियार्की, राइट। In Equality versus Empowerment, Women in Indian Legislature 2023, Soumya Bhowmik makes the case for going a step beyond quota. Okay, ये सौम्या भौमिक क्या कहती है कि कोटा से आगे चलना चाहिए, हमें क्या कहना चाह रही है, एंड टू टर्न आवर अटेंशन टू द कॉम्प्लेक्सिटी दैट शेप द विमेन एजेंसी इन आवर कंट्री. ओके, she seems to be telling something very good. This, he argues, would require a bottom up approach, okay, rather than top down approach, यानी कि पेट्रियार्की से मेट्रियार्की को वो सपोर्ट मिल रहा है, उस टाइप का बात नहीं कर रही है. दैट मीन्स बॉटम अप अप्रोच, कि नीचे से उसको एम्पावर करो वुमेन को, कुछ ऐसा बोल रही है, रादर देन मेयरली हैंडलिंग
आउट रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन इज टॉप डाउन ना, क्योंकि हमने बोल दिया कि इसके लिए 1/3 सीट है। रादर देन डूइंग टॉप डाउन अप्रोच, हमें बॉटम्स अप अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, जिसमें वो खुद स्किलफुल हो, वुमेन खुद एम्पावर्ड हो, और उस एम्पावरमेंट के तहत आगे आए और नेशनल लीडरशिप टाइप में अटेंड करे। लेट्स सी, this, he argue about, requires a bottom-up approach rather than merely handing out reservation in a top-down manner in a country like India, which considerably large heterogeneous. हाँ, we are completely heterogeneous. Population, the dissemination of legislative power would be insufficient. यानी कि अगर आप उसको legislative power कर दे दोगे तो that would be insufficient. Sufficient नहीं होगा to protect the interest of the minority groups such as women, scheduled caste and scheduled tribe. ओके यानी कि अगर हम टॉप डाउन अप्रोच से खाली रिजर्वेशन के बेसिस पे वुमेन्स को एम्पावर करने की कोशिश करेंगे तो उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा। He concludes the implementing of idea of reservation for women would bring about descriptive representation, but its transformation into substantive representation would depend upon change in attitude of the people। देखा, बोल दिया ना कि अगर आप रिजर्वेशन से कुछ डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन करवाना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्टिव मीन्स तुमने दिखा दिया कि यार हमने रिजर्वेशन दे दिया, 1/3 महिलाओं को, 1/3 वुमेन्स को सीट्स मिल गई, तो दैट इज समथिंग डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन, बट इट हैज़ नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सब्सटेंटिव। बट इन एक्चुअल में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। इन एक्चुअल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है, वो ट्रूली इंटरेस्ट विमेंस का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का वो दिखा नहीं पा रही हैं। ठीक है, वो 1/3 रिजर्वेशन, while the reservation of 1/3 of the seats for women belonging to scheduled caste and tribe under the amendment of this, okay, इस आर्टिकल्स के तहत हम उनको 1/3 रिजर्वेशन दे रहे हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेलकम step. It remains to be seen whether it fully acknowledges the complex interplay. Okay, इन आर्टिकल्स के थ्रू हम उनको 1/3 रिजर्वेशन तो दे रहे हैं, but it remains to be whether it fully acknowledges the complex interplay of hierarchy, socio-political relationship, which also affect the extent as well as the nature of the complication that surround the effective realization of women politics for Indian politics to emerge as a truly emancipatory space. Okay, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स का जार्गन्स है और कुछ नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात कर रहा है 1/3 विमेंस रिजर्वेशन का, ठीक है, लेकिन साथ में इसको बाइंड कर दिया किससे? सेंसस एंड डीलिमिटेशन एक्सरसाइज से। सेकेंड पैराग्राफ में रुडोल्फ हेडिया ने क्या बोला है कि विमेन जो नेशनल लीडरशिप अटेन कर रही है, वो उनका जो मेंटल या स्किल है दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय द पैट्रियार्किकल माइंडसेट, उनके फादर या हस्बैंड के थ्रू। ठीक है, तो वो मैट्रियार्की को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज समथिंग कॉम्प्लीमेंट्री टू पैट्रियार्की। पैट्रियार्की को ही सपोर्ट कर रहा है वो एक्चुअल में, उस टाइप की चीज़ें। फिर थर्ड में सौम्या भौमिक क्या कहते हैं कि हमें बॉटम्स अप अप्रोच की ज़रूरत है। अगर बॉटम अप अप्रोच करेंगे तो जो डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन है दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन, दैट विल इफेक्टिवली लीड्स टू द रियल सॉल्यूशंस। ओके, फोर्थ में इन आर्टिकल्स की बात की है, ठीक है, तो ठीक है, अब एक बार इसके क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विल कम टू फोर्स फ्रॉम जैन 2025। नहीं, टाइम तो नहीं बताया यार, उन्होंने बोला है कि सेंसस और डिलिमिटेशन होना चाहिए, उसके बाद ही आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। विल कम टू द फोर्स आफ्टर ऑल स्टेट एंड यूटी अप्रूव्स इट, कर भी दो, जब क्लियरली बोला है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कि इट will come into force, the linking of the implementation of the act is with to long term exercise of census and delimitation। तो ये भी गलत हो गया। will come into force after census, no, census and delimitation, तो ये भी गलत है। तो none of the above, this is the right answer।
As per the Rudolf Hardia, women political leadership depends upon mentorship of spouse political affiliation, parental guidance नहीं, नहीं प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस नहीं. देखो रुडोल्फ हर्डिया ने क्या बोला था कि दे women inherited the mental or their skills from the father or husband, राइट. वो खुद अपने स्किल से ऊपर नहीं आ पा रही है तो वो पेट्रियार्की को ही सपोर्ट कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वुमेन पॉलिटिकल लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन मेंटरशिप पे, नहीं उस पर डिपेंड तो नहीं करता. वो ये बता रहा है कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है पेट्रियार्किकल हियरार्की को, राइट. तो मेंटरशिप ऑफ स्पाउस पॉलिटिकल एफिलिएशन ये तो नहीं होगा. पेरेंटल गाइडेंस की भी बात नहीं है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की भी बात नहीं की है. तो डी आंसर. मतलब लिंकिंग कहीं पर भी नहीं दे रखा पैराग्राफ में एज पर दिस क्वेश्चन क्लियरली कि वो मेंटरशिप पे डिपेंडेंट है, पेरेंटल गाइडेंस पे है या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस पे है. इसीलिए डी नन ऑफ द अबव. अकॉर्डिंग टू सौम्या भौमिक द कोटास फॉर वुमेन इंक्लूड रिक्वायर्स सॉरी ए टॉप डाउन मॉडल. टॉप डाउन मॉडल तो नहीं, उसने बॉटम्स अप अप्रोच की बात की है. द कोटा फॉर वुमेन शुड फुलफिल ए डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन. नहीं, उसने क्या बोला था कि दिस डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन शुड ट्रांसफॉर्म इनटू ए सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन. दिस इज द राइट आंसर. इट इज आल्सो नो. The amendment to Article 330 and 332 aims to appoint Rajya Sabha member based on cultural diversity. इसके बारे में कहाँ बात हुई यार. यहाँ क्या बोलता है, with the reservation of 1/3 of seat for women belonging to scheduled caste, scheduled tribe under the amendment of Article this. इसकी बात कर रहे हैं वो. Appoint the Rajya Sabha members based on cultural diversity. नहीं. कोटा फॉर वुमेन गवर्नर, विमेंस की बात हो रही है, नॉट फॉर द वुमेन गवर्नर्स. विमेन सपोर्ट पर्सन नो. तो डी इज द राइट आंसर. ओके. लेट्स गो टू द नेक्स्ट comprehension. Okay, I think इट इज़ क्लियर टिल नाउ दैट वट एवर वी हैव डन उसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई डीप करंट अफेयर्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. सारे के सारे आंसर्स यू कैन चूज फ्रॉम योर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एज वेल एज योर बेसिक स्किल सेट ऑफ माइंड. ओके, यानी कि क्वेश्चंस में ही आंसर छुपे हुए हैं, पैराग्राफ में ही आंसर है, और थोड़ा सा मतलब अपना ब्रेन लगाओ, बेसिक ब्रेन, बहुत ज़्यादा डेल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर लेमन अबाउट द टॉपिक स्टिल यू आर एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्यूरेटली. ठीक है, चलो अगले पैराग्राफ में देखते हैं. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड a protection against the import of foreign goods and a rupees sterling foreign exchange ratio that would discourage import. Okay, Indian industrialists की बात कर रहे हैं. ठीक है. To organize business interests they formed the Indian Industries and Commercial Congress in 1920. Okay, and FICCI in 1927. ठीक है. The industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedient movement. Okay, इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, इस मूवमेंट को सपोर्ट किया. व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च दे गेव देम फाइनेंशियल सपोर्ट. कैसे किया? ओके, एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स. ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी और रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड. आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके, द बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक. Okay, they were apprehensive of the spread of militant activities and worried about the prolonged disruption of business as well as the growing influence of socialism. Okay, फर्स्ट पैराग्राफ क्या बताता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट.
ओके, वाई? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए था, किसका? अगेंस्ट द फॉरेन गुड एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया इन्होंने, कैसे किया? फाइनेंस के थ्रू, और रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेंट गुड्स, बायकॉटिंग, दैट मीन्स बॉयकॉट। ठीक है, लेकिन आफ्टर द फेलियर ऑफ आरटीसी दे वर एप्रीहेंसिव, यानी कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेलियर हुआ तो बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक, यानी कि जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो जो बिजनेस ग्रुप थे वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे, मतलब यूनिफॉर्मली एक, मतलब हो सकता है ना कि कुछ लोग एंथुजियास्टिक हो स्टिल, ठीक है, और कुछ लोग डिस्करेज हो गए हो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। ठीक है, दे वर ऑल्सो एप्रीहेंसिव, वो डरे हुए थे कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ फैलेगी, लॉन्ग डिसरप्शन ऑफ बिजनेस रहेगा और ग्रोविंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, द इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट। ओके, यानी कि यहाँ पे जो वर्कर्स थे दे डिड नॉट पार्टिसिपेट, उन्होंने कहा नो सीडीएम। ठीक है, इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन, यानी कि नागपुर रीजन में थोड़ा बहुत जो वर्किंग क्लास थी दे फेवर्ड, अदरवाइज इन लार्ज they were against it. As the industrialists came closer to the Congress, workers stayed aloof. Okay, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर के बीच में जो टेंशन रहता है ना, देखो इंडस्ट्रियलिस्ट ऊपर क्लोजर थे कांग्रेस के, उन्होंने सपोर्ट किया, तो वर्कर्स को टेंशन होगी कि यार ये जो भी मूवमेंट चल रहा होगा वो इंडस्ट्रियलिस्ट की फेवर में होगा, तभी उन्होंने क्या किया होगा कि पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट। ओके, कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, सिलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि बाइकआउटिंग की। ओके, देर वर स्ट्राइक बाय द रेलवे वर्कर्स। ओके, डॉक वर्कर्स 1930,000 ऑफ द वर्कर इन छोटा नागपुर टिन माइंस। ओके, यानी कि माइंस में भी किया इन्होंने, बट द कांग्रेस वर रिलेक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड। बट यहाँ पे इसने क्या दिखाया है कि कांग्रेस वर रिलेक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनिएट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इम्पीरियलिस्ट। ओके, यहाँ पे उसने क्या दिखाया कांग्रेस ने कि बहुत सारे कुछ वर्कर्स ने सपोर्ट भी किया, बट द कांग्रेस वर रिलेक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर डिमांड, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम वर्कर्स की डिमांड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि उनको भी डर था ना कांग्रेस को भी कि इससे क्या है कि इंडस्ट्रियलिस्ट दूर हो जाएंगे, दैट वुड एलिनिएट, मतलब अलग कर देंगे, अलग हो जाएंगे इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड डिवाइड द एंटी इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस, और जो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट जो हम एकजुट हो हुए थे, यानी कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हम सभी एक लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस वगैरह, तो उसमें डिवीज़न हो जाएगा, हो सकता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट स्टे अवे हो जाए उससे। ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ओके, वुमेन्स ने भी लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन किया ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च। सॉल्ट वही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जिसको हम डांडी मार्च भी बोलते हैं। ठीक है, 1000 वुमेन केम आउट फ्रॉम देयर होम टू लिसन टू हिम, दे पार्टिसिपेटेड इन मार्चेस, मैन्युफैक्चरिंग साल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिगर शॉप, मैनी वेंट टू द जेल। ओके, यानी कि विमेंस ने भी खुल के पार्टिसिपेशन किए। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चंस। विच इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि कौन सा ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके कारण सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, राइट। लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो यार बहुत पहले हो गया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कमेंसिंग ऑफ डांडी मार्च, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में क्या क्या था? साल्ट मार्च, यानी कि डांडी मार्च, तो इसका यही आंसर है, तो इसमें बाकी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट?
ओके कौन सी चीज ट्रू है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट? द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड पार्टनरशिप विद एमएनसीज। नहीं, दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ दिस। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट तो वैसे ही प्रोटेक्शन चाह रहे थे ना अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, तो एमएनसीज के साथ क्यों मतलब पट वो हाथ मिलाएंगे? तो दे प्रेफर्ड पार्टनरशिप विद एमएनसीज? नो, द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वर कंसर्न ऑफ डिसरप्शन बिजनेस। यस, इसके लिए कंसर्न तो थे वो। चलो ठीक है, एक बार इसको ट्रू कर देते, नेक्स्ट ऑप्शन और देखते हैं। द वर्किंग क्लास रिजेक्टेड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, वर्किंग क्लास रिजेक्टेड, ऑल्दो बहुत सारे वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ये एक कंप्लीट यूनिफॉर्म स्टेटमेंट बना दी है कि वर्किंग क्लास रिजेक्टेड। तो ये भी गलत होना चाहिए, क्योंकि दिखा रखा था ना कि बहुत सारी वर्किंग क्लास थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया, जैसे नागपुर रीजन में। ठीक है, सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट, अडॉप्टेड द आइडियाज़। ठीक है, वहाँ रेलवेज में स्ट्राइक हुई। ठीक है, फिर कुछ टिन माइंस में भी हुई थी, राइट। तो ये स्टेटमेंट वैसे गलत हो गया। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ए पार्शियल सक्सेस। इसके बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आया तो था, बट इट वाज ए पार्शियल सक्सेस, ए कंप्लीट फेलियर। ये देखते हैं एक बार। आफ्टर द, हाँ ये रहा, राइट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये दिया हुआ है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी थी, तो पार्शियल सक्सेस तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया, ये भी श्योर है। तो दैट मीन्स बी इज़ द आंसर। और इसमें हमने कहीं पर भी मतलब हमारी कोई प्रायर हिस्ट्री की नॉलेज है उस पर फोकस नहीं था, कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेडिकमेंट फॉर कांग्रेस? danger of division of opposition to the British government, loss of faith by marginalized section in the Congress। आई थिंक मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में बात ही नहीं हुई कहीं पर भी, तो इसको गलत कर देते हैं। फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट स्टर्लिंग, इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट कंसर्न थे, फर्स्ट लाइन में ही था ना, ये देखो। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार द इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट wanted protection against the import of foreign good and a rupee sterling foreign exchange ratio, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्करेज होगा इंपोर्ट। ठीक है, उसके लिए कंसर्न थे, तो कांग्रेस तो नहीं थी, राइट। एंड थर्ड वन वाज, लास्ट वन वाज नन ऑफ द अबव। डेंजर ऑफ डिवीजन ऑफ अपोजिशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस, इसमें तो थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट फोर्सेस को भी डिवीज़न हो जाएगा, ये बोला हुआ था ना इधर। बट द कांग्रेस did not include the demands of workers as part of program of struggle. It felt that this would alienate the industrialist and divide the anti-imperialist forces. Right? So I think यही आंसर होना चाहिए, danger of division of opposition to the British government. Okay, as per this paragraph. Which of the following statement is correct with reference to the civil disobedience movement? It encouraged militancy among workers. Militancy की बात तो हो रही थी। Let's see. Breaking of salt law, manufacturing salt and demonstrating it in front of the government. हाँ ये तो था ही, women's ने मार्च किया, ये किया, वो किया। It urged the industrialist to accept socialism। नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों सोशलिज्म की तरफ बढ़ेगा, लेकिन सोशलिज्म की वेव चल रही थी, जिससे कि इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़े से डरे हुए थे, राइट। कहाँ पे था, देवर एप्रीहेंसिव। कौन एप्रीहेंसिव था, कौन डरे हुआ था, इंडस्ट्रियलिस्ट, ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़। हाँ, कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, लेकिन ये नहीं दिखाया गया इसमें कि वर्कर्स कर रहे हैं मिलिटेंट एक्टिविटीज़, राइट। तो वो वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा। एंड वरीड अबाउट द प्रोलॉन्ग डिसरप्शन ऑफ बिजनेस एज वेल एज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंगस्ट द यंग मेंबर ऑफ कांग्रेस, यानी कि सोशलिज्म की तरफ कौन बढ़ रहे थे, यंग मेंबर्स है कांग्रेस के, वो ना कि वर्कर्स।
ठीक है। तो इट एनकरेज द मिलिटेंसी अमंग वर्कर्स, ये भी गलत हो गया। इट अर्ज द इंडस्ट्रीज टू एक्सेप्ट सोशलिज्म, नहीं। यंग मेंबर ऑफ कांग्रेस वो बढ़ रहे थे सोशलिज्म की तरफ। कौन कौन थे वो यंग मेंबर उस टाइम पे? दैट इज कम्प्लीटली द हिस्ट्री टाइप क्वेश्चंस, राइट। अगर आपको याद है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज इस कॉम्प्रिहेंशन से भी देखो कम्प्लीटली हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग मास मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट? ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही बोला था कि यार दे आर सपोर्टिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसी पैराग्राफ पे बात चल रही है, तो बाकी हम वैसे ही छोड़ देंगे। देखो ना, स्टार्टिंग में ही बोला था ना, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड प्रोटेक्शन, और इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या, सीडीएम को फेवर किया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और बाइकॉट, राइट। तो सीडीएम को किया इन्होंने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है। Which of the following can be considered as a major outcome of civil disobedience movement? A partial support of working class, मेजर आउटकम क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का? पार्शियल सपोर्ट तो वर्किंग क्लास का में मिला था, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे वर्किंग क्लास ने सपोर्ट किया था, तो ये ट्रू हो सकता है, राइट। गैल्वेनाइजिंग विमेन इन पॉलिटिकल स्फीयर, ये तो डैम श्योर है यार, विमेन्स ने फुली पार्टिसिपेट किया था। सोशलिस्टिक इन्फ्लुएंस अमंग द कांग्रेस कैडर, ये बोला था ना अभी हमने देखा कि यंग मेंबर्स ऑफ कांग्रेस दे वर गेटिंग इन्फ्लुएंस टुवर्ड द सोशलिज्म, तो तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो क्या आंसर होगा हमारा? डी।